Student, I Kinnari Dave for Standard 12, Unit 12 of Part 7, Aldehyde, Ketone and Carboxylic Acid. I am going to explain you in today's part that about the reduction of aldehyde and ketone. Here we are going to get the two different types of product by reduction of aldehyde and ketone. As we can use any of the good reducing agent like nickel, palladium, platinum, uh, lithium aluminium hydride or sodium borohydride, which are the good reducing agent. So here part 7 of unit 12 of standard 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid, I Kinnari Dave is explaining you about the reduction of aldehyde and ketone. Let us look at the board, student. Today's topic, reduction of aldehyde and ketone. Here we get two different products by using the good reducing agent like nickel, palladium, platinum, lithium aluminium hydride, sodium borohydride. Any one we can use, and here the product is one will get the product as a hydrocarbon and another way we get the product as alcohol. So when we are doing the reduction, we know that when the reduction is done, hydrogen is to be removed. So that is known as the reduction. So here by using this any of this good reducing agent for the carbonyl group, hydrogen is removed and we get the product. So let us see how it is occurs. So here we are going to remove the oxygen by adding the hydrogen for reduction. Here we are taking any of the example. First we will take the example of aldehyde. We have taken the example of aldehyde will take, then we will go with the ketone. So here we have take the acetaldehyde. When acetaldehyde, any of the reducing agent from the given above, we can use it. So here we are using LiAlH4 lithium aluminium hydride. As I say, we have to add the hydrogen because we are doing the reduction. So we are adding the hydrogen. So now what happens over here, student? This double bond O will be one bond break and one hydrogen will be added over here and one hydrogen will be here. So the product is CH3. यहाँ पर CH, ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो CH2 और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर OH होगा. So this is our alcohol, that is ethanol. So here the product we get, that is a primary alcohol. Primary alcohol we say as a ethanol. So you understand that aldehyde का जब रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द रिवर्स प्रोसीजर. मतलब जब यूनिट 10 हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है और ये स्टूडेंट कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देता है. सो लेट अस सी नाउ विद द एग्जांपल ऑफ कीटोन विथ रिडक्शन. हियर एल्डिहाइड लिया था, अब कीटोन लेके हम चलते हैं. सो CH3 C double bond O CH3 we have taken here acetone and the any of the other reducing agent, suppose nickel or palladium we are taking. As I say, hydrogen is to be added. So here we are going to take add the hydrogen
So we get CH3. Now here you have वन डबल बॉन्ड ब्रेक, सो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगेगा और कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ सेकेंड नंबर के कार्बन पर ही लगेगा. सो दिस इज योर CHOH and this is your CH3. You can see this is your secondary alcohol. It is a secondary alcohol. So now you understand that here we will get by taking the ketone we get the propane 2-ol, that is a secondary alcohol. Now this is the simple reduction process as I explain you. Now here the preparation of aldehyde and ketone में भी हमने ये पढ़ा हुआ था. जब प्रिपरेशन हमने किया था तो अल्डिहाइड जब हम बनाना चाहते थे तब हमने लिया था प्राइमरी अल्कोहल, और जब हमें कीटोन बनाना था तब हमने लिया था सेकेंडरी अल्कोहल. बट वो प्रोसीजर उल्टा था, मतलब हमें यहाँ प्राइमरी अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाना है तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो ये साथ में इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको मेमोराइज भी हो जाए और ये बात भी आपके क्लियर हो जाए कि भाई हम जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे पास में KMnO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, वो सब लेके हम कर सकते हैं. सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्राइमरी अल्कोहल में से प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड. नाउ द अनदर वे ऑफ रिडक्शन, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना उसे हम रिडक्शन नहीं कह सकते हैं. दोनों प्रोसीजर एक साथ में भी हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव होता है एंड हाइड्रोजन ऐड होता है, ऐसा भी पॉसिबल है. दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन. सो नाउ लेट अस सी विद सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, और उसका हम नेमिंग रिएक्शन से लेंगे उसको वुल्फ किस्नर रिएक्शन. वुल्फ-किश्नर रिएक्शन. सो ये हम नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी हमें इसको पूछा जाता है एग्जाम में. यहाँ पर जैसे मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ सिर्फ हमने ये वाले एग्जाम्पल में सिर्फ हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है. नाउ हियर इन द वुल्फ-किश्नर रिएक्शन दोनों प्रोसीजर होती है. मीन्स फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन एंड देन यू आर एडिंग द hydrogen. So here the best the reducing agent is hydrazine. यहाँ ये हाइड्रेजिन का हमें यूज करना है. NH2 प्लस KOH. स्टूडेंट याद करो जब हमने लास्ट एपिसोड के अंदर हमने एमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस पढ़े थे एंड मैंने आपको बताया था कि बुक के अंदर NH2Z करके और Z की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, तो आप उसमें से प्रैक्टिस करके कन्वर्जन कर लेना. उसके अंदर एक ये NH2 मतलब हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल दिया हुआ था. सो होप सो यू आर remembering that, and if you have not learned that, if you have not prepared that properly, then you can just go through the topic from the textbook. So यहाँ पर हम हाइड्रोजन उसके साथ में KOH और प्लस लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल. सो ये हम लेंगे वुल्फ-किश्नर रिएक्शन के लिए. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वुल्फ-किश्नर रिएक्शन में जो भी हमें प्रोडक्ट के लिए जो हम गुड रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं वो है हमारा ये. तो अब हम यहाँ कोई एग्जाम्पल लेते नहीं हैं, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप C+O और फिर साथ में ये मैंने जैसे बताया हाइड्रोजन, तो NH2. अब यहाँ पर -H2O हो जाएगा. सबसे पहला मैंने बोला ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो -H2O हो जाएगा और यहाँ C+O के साथ में NH2 जुड़ जाएगा.
तो हमारे पास में यहाँ प्रोडक्ट होगी C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका निकल गया है तो उसके साथ में N जुड़ेगा, ये N, और ये आपका है NH2, तो ये NH2 जो हमने एमोनिया डेरिवेटिव में C डबल बॉन्ड N Z, इसको हमने एज अ Z कंसिडर किया हुआ था। अब आगे जो हमने यहाँ KOH और इथिलीन ग्लाइकोल लिया है तो उससे फर्दर रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पर, तो KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, जब KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में हम यहाँ रिएक्शन करते हैं तो अब यहाँ क्या होता है, आपका ये N2 है वो निकल जाता है और वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सो यहाँ आपके पास में हो जाएगा C, और ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये आपका N2 सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगी जिसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से यहाँ हाइड्रोकार्बन मिलता है जिसे हम वुल्फ किस्नर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और ये नेमिंग रिएक्शन है। उसके लिए हाइड्रोजन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए अगर देखते हैं या तो हम लैब के अंदर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, तो फिर भी अगर आप नहीं उससे वेल वर्स है तो ये हाइड्रोजन का मतलब वुल्फ किस्नर का मेथड जो है वो अच्छी तरह से बुक में से पढ़ लेना है। सो नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन, because first you have removed the oxygen and then you have added the hydrogen. Now the next will go with this example के साथ में अगर हम लेते हैं हम इसके लिए, तो अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, तो यहाँ लेते हैं R C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ उसका नाम जो हमें लेना है वो नया नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं टॉलेंस टेस्ट भी कहेंगे हम। तो आगे के रिएक्शन के लिए पहले हम इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं थोड़े से और फिर टॉलेंस टेस्ट में जाते हैं, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो प्रैक्टिकल की एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में काफी नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर हमें लेना है, तो अब इसके एग्जाम्पल एल्डिहाइड के एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया वही जो हमने लिया था, सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ हम लेते हैं हाइड्रोजन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देते हैं, अभी ये यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों आपको यहाँ लिख के बताया है। तो यहाँ आपके पास में प्रोडक्ट होगी हाइड्रोकार्बन, ये है आपका इथेन जो आपको हाइड्रोकार्बन मिला यहाँ पर। अब यहाँ एल्डिहाइड के बदले में आप कीटोन लेके काम कर रहे हो, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम वे अपने प्रोडक्ट के लिए आप ले रहे हो हाइड्रोजन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोपेन मिलेगा। सो यहाँ होगा CH3 CH2 CH3। सो इस तरह से यहाँ वुल्फ किस्नर रिएक्शन से हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है जिसमें से ऑक्सीजन पहले रिमूव होता है और फिर हाइड्रोजन ऐड होता है, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इट इज नोन एज द क्लेमेंशन रिडक्शन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की तरह है। तो ये है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन।
क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए यहाँ हम लेते हैं जिंक एमलगम। हम हर एक स्टूडेंट, हर एक के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं वही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ हमें लेना है जिंक एमलगम, उसके साथ में HCl। तो क्लेमेंशन रिएक्शन के लिए हमारा पास में जो रिएक्टेंट है वो है C डबल बॉन्ड O, जिंक एमलगम means zinc plus mercury, and here we are taking HCl plus H2 plus H2। अब यहाँ पर क्या होगा, सीधा सा स्टूडेंट्स आपके पास में हाइड्रोकार्बन ही बनता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन दोनों निकल जाएंगे, जो कार्बन की दो वैलेंसी खाली पड़ी वो सीधा हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ आपको मिला हाइड्रोकार्बन। This is your hydrocarbon through Clemmensen reaction, and reduction agent, good reducing agent which you have used, that is a zinc amalgam and HCl plus H2। Now example लेके चलते हैं, aldehyde का example लेते हैं पहले। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, H, जिंक एमलगम प्लस HCl प्लस H2। एज आई सेड, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकलने के साथ में दोनों उसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास में प्रोडक्ट होगी इथेन, सिंपल हाइड्रोकार्बन। सेम वे अगर आप कीटोन लेते हो, सो कीटोन का एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन लिया, सेम आपने लिया है क्योंकि क्लेमेंशन रिएक्शन ही कर रहे हो आप। तो HCl प्लस H2, ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकलने के साथ में दोनों हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। सो यहाँ CH3, CH2, CH3, मतलब ये मिला आपका प्रोपेन। तो ये आपका रिएक्शन हुआ क्लेमेंशन रिएक्शन। उसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो कॉन्सेंट्रेटेड HI का रेड फॉस्फोरस के साथ में है। स्टूडेंट जस्ट इतना नोट डाउन करो, तब तक हम उसके बाद का आगे का रिएक्शन में हम जाते हैं। सो नोट डाउन दिस। After studying the Clemmensen reaction, student, last reaction for the reductions of aldehyde and ketone, that is with the red phosphorus and concentrated HI के साथ में है। So here we'll take that concentrated HI hydroiodide plus red phosphorus. We have studied the reduction of aldehyde and ketone with a different product. One is hydrocarbon we are getting and another is alcohol we are getting. For that we are removing the oxygen and adding the hydrogen, or otherwise directly add with the hydrogen. So both the different procedure we have studied, and here for the preparation of hydrocarbon we have studied the naming reaction, that is Wolff-Kissner reaction and the Clemmensen reaction. Now here let us see, we'll take directly example of aldehyde CH3, C double bond OH, or we are taking it concentrated HI in presence of red phosphorus. So here also directly oxygen will be removed and hydrogen is added. So here we get CH3, CH3 that is, and I2, ये जो आयोडीन है वो हमें मिलेगा। So plus I2. So this is also your hydrocarbon. Here also you get that मीथेन, इथेन एंड इथेन के साथ में यहाँ आयोडीन मिलता है हमें। So this is the reactions or reduction of aldehyde and ketone. Now we'll go with the next, the oxidation. After reduction we are going to take the oxidation of aldehyde and ketone. Oxidation of aldehyde and ketone.
Now here we are taking the good oxidizing agent. As I said, the concentrated HNO3 है, हम KMNO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, तो ये हम इजीली कर सकते हैं. बट यहाँ एक बात ये ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि अल्डिहाइड का तो फिर भी ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल है, पर कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता है. मीन्स ऑक्सीडेशन करना मीन्स यहाँ हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर. अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं तो क्यों उसका ऑक्सीडेशन इजी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्डिहाइड इज +1 while the ketone is, oxidation number of ketone is +2. सो इसकी वजह से कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना इजीली हमें फुलफिल नहीं हो सकता है, उसके लिए स्पेशल कंडीशन को अप्लाई करना पड़ता है, देन ओनली इट इज पॉसिबल. सो फर्स्ट we'll go with the oxidation of aldehyde. Here we get weak oxidizing agent. यहाँ मतलब aldehyde की ऑक्सीडेशन करने के लिए weak oxidizing agent भी चल सकता है. weak oxidizing agent तो कौन कौन से है हमारे पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट, और उसमें भी टॉलेंस, मैंने जैसे बताया कि टॉलेंस टेस्ट जो है वो लैब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अल्डिहाइड और कीटोन को अगर डिफ्रेंशिएट करना है एग्जाम में, लैब में पूछा जाता है प्रैक्टिकल के लिए, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो हम टॉलेंस टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्योंकि कीटोन जो है उसके लिए इजीली वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसीलिए कीटोन जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है. सो विल राइट ओवर हियर कीटोन डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट. सो प्रैक्टिकल एग्जाम में एल्डिहाइड पूछा है कि कीटोन पूछा है, वो फाइंड करने का ये बेस्ट तरीका है. और टॉलेंस रिएजेंट जो है हमारे पास में वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, तो वो हमें लेना है. जो टॉलेंस रिएजेंट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड Ag सिल्वर अमोनिकल या तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH3 ट्वाइस, ये हमें लेना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड. और फिर उसके साथ में हमें रिएक्शन करना है. तो अगर यहाँ हम देखते हैं RC≡OH और हमने ये टॉलेंस रिएजेंट लिया है AgNH3 ट्वाइस, फिर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया. तो यहाँ जो रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास में OH-, तो ये जो OH- यहाँ रहेगा वो OH- का आगे हम रिएक्शन से हमें मिलता है, तो यहाँ रिएक्शन में लेते हैं +OH- ले लेते हैं. ये भी जो है वो रिएक्शन में ही बताते हैं, तो अल्डिहाइड प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस OH-, और यहाँ फिर हमें जो आगे मिलेगा उसमें हमारे पास में होगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. सिल्वर जो टेस्ट ट्यूब के नीचे सिल्वर जमा हो जाएगा, इसीलिए हम उसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. साथ में यहाँ NH3 निकलेगा और RCOO-, मतलब यहाँ पर हमें ये इस तरह से टेस्ट मिलती है. तो सिल्वर मिरर टेस्ट इसीलिए कहा जाता है कि अल्डिहाइड के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब में नीचे की साइड में सिल्वर जमा हो जाता है और वो सिल्वर की एक परत देता है, एक लेयर फॉर्म करता है, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. स्टूडेंट MCQ का
ये वाइवा का एक क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, इसीलिए याद रखोगे। फॉर्मूला भी पूछते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट एक्सप्लेन करो, ऐसा भी वाइवा में पूछा जाता है। तो दैट यू जस्ट कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू रिमेम्बर। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो सिल्वर मिरर टेस्ट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड जो है वो देते हैं। तो ये भी यहाँ पर है कि अगर तुम्हें एलिफेटिक अल्डिहाइड दिया है या एरोमेटिक अल्डिहाइड दिया है, दोनों में से कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूजफुल नहीं है, पर इट इज गिवन बाय बोथ। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो अब अगर हमारे पास में अगर सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड दिया है तो हम क्या करेंगे, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं फेलिंग टेस्ट। सो यहाँ पर हमें फेलिंग का ए एंड बी दो सॉल्यूशन लेना पड़ता है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। दोनों सॉल्यूशन जो है उसमें फेलिंग ए सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग बी सॉल्यूशन जो है उसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। ये भी वाइवा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ नेक्स्ट इट इज फॉर फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट for oxidation of aldehyde. So here as I said, Fehling A solution, Fehling A which is having the CuSO4, freshly prepared CuSO4, and Fehling B is having sodium potassium tartarate. It is also गुड वाइवास क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हम जो अल्डिहाइड है RC≡OH उसके अंदर फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों का सॉल्यूशन लेना है। फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी सॉल्यूशन, और फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन दोनों को जब हम अल्डिहाइड के अंदर डालते हैं तब हमारे पास में यहाँ जो मिलता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, जिसका रेड कलर का हमें पीपीटी मिलता है, यहाँ -H2O, और यहाँ जिस तरह से हमारे पास में है तो RCOO माइनस ऑक्सलेट हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये जो रेड कलर की पीपीटी है उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन अल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक है, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड देता है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। सो कीप इन योर माइंड दिस फेलिंग टेस्ट इज गिवन ओनली बाय द एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो यहाँ पर से आप एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्डिहाइड का डिफरेंशिएट करके एग्जाम में अपने आप के गुड स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, लैब पर्पस और प्रैक्टिकल पर्पस आई हैव गिवन यू। अलॉन्ग विद दैट नेमिंग रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने आज के जो टॉपिक में पढ़ा उसमें रिडक्शन के लिए हमने दो इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ी जो नेमिंग रिएक्शन में है, उसमें हमने वुल्फ-किस्नर एंड क्लेमेंसन रिएक्शन पढ़ा। और ऑक्सीडेशन जब हमने पढ़ा तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ा और फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन से लेके एलिफेटिक अल्डिहाइड हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कीटोन, जो मैंने बताया कि कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है, उसके लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चलता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तब तक स्टूडेंट्स ये सारे जो कन्वर्जन्स है वो कन्वर्जन की प्रैक्टिस करते रहना और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिमाग में फिट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट।